Hello everyone, I am your English teacher and today we are going to study poem Childhood which is given in 11th class English syllabus in your book Hornbill. Poem is Childhood, number 4 poem Childhood, and it is written by Marcus Nathan, who is a Norwegian poet. So in this poem the poet is thinking over his childhood and he wonders that where his childhood has gone. In every stanza, the poet thinks, he just ponders over the stages that where his childhood has gone, where his childhood has gone, and he contemplates that maybe that when he was 11-year-old, when he started knowing that the earth is that there is nothing called hell and heaven. Then he lost his childhood. In the second stanza, he thinks that maybe that when he came to know that the people who are elder, they don't behave like that. They say there is difference between their saying and doing. He thinks maybe that it was the time when he lost his childhood, and then after that he thinks that maybe that. When he started knowing that when he came to know that he was he had his own mind, he had his and by that mind he is able to take his own decisions. He had no need to ask something anyone to anyone about anything, and he can take his own decisions. Then he thinks that maybe that it was the time when he lost his childhood. So in the complete poem, he keeps thinking that when he lost his childhood, but he can't get the answers. Then finally he thinks that he can find his lost childhood in an infant's face. Means जो पोइट है वो अपने चाइल्डहुड को पूरी पोएम में तलाश करता है एंड फाइनली वो ढूंढता है कि सब ढूंढता हुआ वो सोचता है कि शायद एक छोटे बच्चे के फेस में उसे उसका चाइल्डहुड मिल सकता है. एंड इन दिस पोएम द पोएट इज feeling like he had lost his childhood and he should find it anywhere, but he is not able to. So just read this poem and let's start. In the first stanza, the poet says, when my childhood go, was it the day when I ceased to be 11? When was it the time when I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be was that the day? So now in the first stanza, the poet thinks he is being rationalized. He is being rationalized in the sense because he is thinking that you all know that if people talk about hell and heaven but nobody has seen hell and heaven, are they really in existence? Do you know? No, because ये सभी बातें हमने सुनी है, चाहे किताबों में पढ़ी है या किसी और से सुनी है कि हेल और हेवन होते हैं, बट देयर इज नो मार्क ऑन द मैप ऑफ हेल एंड हेवन. ये कहीं भी किसी ज्योग्राफी बुक में या फिर किसी मैप पे आपको नहीं मिलेंगे. सो द पोएट इज थिंकिंग दैट मे बी when he came to know that hell and heaven are not in real, then his childhood go, or when it was, or if it was the time, maybe that it was the time when he lost his childhood. So he says, when did my childhood go? कि मेरा childhood कहाँ चला गया, मेरा बचपन कहाँ चला गया, and कब चला गया. कब, when means कब, वो which time it was when he lost his childhood. Was it the day when I ceased to be 11? Was it the day I ceased to be 11? means वो कहता है कि शायद जब ये 11 years का हुआ तब इसका जो बचपन है वो गायब हो गया. बिकॉज यू ऑल नो दैट बच्चे जो होते हैं छोटे, उनको अगर हम कुछ बातें कहते हैं तो वो उसको इजीली एक्सेप्ट कर देते हैं. बट व्हेन यू कम टू योर एज ऑफ when you gain some when you gain maturity level, then you come to know that no, there should be some rationalization in there should be some logic in everything. You start finding logic. अगर आपको कोई कहता है कि बेटा ये चीज़ ऐसी है तो आप लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हमने तो ऐसा नहीं देखा, हाउ व्हाई शुड वी बिलीव. तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चे शुरू करते हैं करने, तो माना जाता है कि वो बड़े हो गए हैं, तब वो आपको ऐसा लगता है कि बड़े हो गए. तो पोएट जो है वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है एंड आंसरिंग हिमसेल्फ कि उसका जो चाइल्डहुड है वो कब गायब हुआ. क्या ये उस समय गायब हुआ जब वो 11 years का हुआ था और उसमें थोड़ा सा समझदारी आने
क्या ये वो टाइम था जब उसका चाइल्डहुड गायब हुआ, या जब उसका चाइल्डहुड उस समय पर उससे वो बड़ा हुआ और चाइल्डहुड से दूर हुआ, और या फिर उस समय उसने उसके बचपन को छोड़ करके बड़ा एडल्ट मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा गेन किया। Was it the day when was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? Then secondly the poet says, क्या ये वो टाइम था जब उसको ये समझ आया कि हेल और हेवन जैसी जो चीज़ें हैं वो नहीं होती हैं? तो क्या ये वो टाइम था जब उसको समझ में आया कि उसने उसका चाइल्डहुड जो है वो लॉस्ट करा है? क्या ये वो टाइम था? इस समय पे क्या उसका चाइल्डहुड गायब हुआ था पोएट का? Could not be found in geography and therefore could not be therefore could not be was that the day। तो इसलिए पूछता है कि क्या ये वो दिन था जब उसने उसका बचपन जो है उससे उसे दूर हुआ था। When did my childhood go? Was it the time when I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? Means in the second stanza, the poet is describing, he is talking about, he is saying that क्या इस समय उसका बचपन उससे जुदा हुआ, उससे अलग हुआ, जब उसको ये लगा कि एडल्ट्स जो हैं बड़े लोग होते हैं एडल्ट्स, वो ऐसा बिहेव करते हैं कुछ और दिखाते हैं कुछ और। मीन्स वो लोग खुद लोगों को पार्ट्स पढ़ाते हैं किसी चीज़ का, यू शुड दे सेट द डूज एंड डोंट्स बट दे डोंट फॉलो दैट। वो खुद तो कुछ सेट करते हैं, भाई ये रूल है आपको इनको फॉलो करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए कुछ और। अगर वो बच्चे के सामने वो चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, देन द children get they realize that they are not saying truth themselves। तब उन्हें पता लगता है कि वो लोग खुद कुछ और कह रहे हैं और खुद और कर कुछ और रहे हैं। दैट्स वाई सपोज इफ यू आर, जैसे कि आपके छोटे भाई बहन हैं, आप लोग 11th में पढ़ते हैं, एंड इफ यू आर टेलिंग देम टू स्टडी हार्ड एंड यू योरसेल्फ आर नॉट डूइंग, देन दे वुड नॉट फॉलो यू। वो कहेंगे कि भैया आप खुद नहीं पढ़ते, दीदी आप खुद नहीं पढ़ते और हमें पढ़ने पड़ते हैं। इन द सेम वे सो ये राइटर जो पोएट है ये कहता है कि क्या ये वो समय था जब मुझे समझ में आया कि बड़े लोग जो होते हैं एडल्ट्स होते हैं उनके कहने में और करने में फर्क होता है। देयर इज सो मेजर डिफरेंस बिटवीन देयर सेइंग एंड डूइंग। तो क्या ये समय था जब उसका बचपन जो है उससे अलग हुआ था। इन द थर्ड स्टैंजा द पोएट सेज, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? Was it then I found my mind was really mine? And now in this stanza the poet says कि क्या ये वो समय था जब पोएट को समझ में आया कि मेरा जो माइंड है वो मेरा खुद का है, एंड आई हैव द राइट टू टेक माय ओन डिसीजन। जैसे कि आप लोग बड़े होते हैं अपने मम्मी पापा से कहते हैं कि भी अब मैं अपने आप समझता हूँ ये, या मुझे पता है क्या करना है, बट इट इज़ बैड। तो इन द सेम वे पोएट जो है वो कहता है कि क्या मुझे उस समय पे मेरा बचपन दूर हुआ जब मुझे समझ आया कि इट इज़ माई माइंड इज वॉज रियली माइंड टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, बट इट इज़ नॉट गुड। कि अगर आप लोग सोचते हैं कि हमारा माइंड है, हमारे डिसीजन से, माई लाइफ माई डिसीजन टाइप में, माई लाइफ माई रूल्स, जो कि आजकल बच्चे कहते हैं, रूल्स भी सेट किए हुए होते हैं एंड यू हैव टू टेक द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स। अपने बड़ों की सलाह मान के काम करना चाहिए। बट द पॉइंट इज आस्किंग टू हिमसेल्फ that was it the time when he realized that he has his own mind and he has the right to take his own decisions, to use whichever way I choose। किसी भी तरीके से वो चाहे अपने माइंड को यूज कर सकता है, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर not those of the other people but my own and mine alone। Was that the day? So the poet asked to himself, the poet asked to himself that when he questions himself that was that the time कि जब मैं बड़ा हुआ मुझे लगा मेरा खुद का लाइफ है एंड आई हैव टू टेक द राइट टू टेक माय ओन डिसीजंस। तो क्या ये वो दिन था जब उसका जो चाइल्डहुड है पोएट का उससे अलग हुआ, और क्या इस समय पे उसने मैच्योरिटी लेवल अपना गेन किया? Where did my childhood go? And now the question, the poet is asking the question which is a little bit different from the other questions जो भी उसने पीछे थी, इससे पहले previous 3 stanzas में किए थे। Where did my childhood go? Now he is questioning where did my childhood go? So he says it went to some forgotten place। He says that ये ऐसी जगह चला गया जो कि उसको खुद को नहीं पता है, forgotten place पे चला गया है and he is not able to find that childhood। वो ऐसे अपने आप से कह रहा है that is hidden in an infant's face, that's all I know। And now he gives the answer कि उसका जो चाइल्डहुड है कहाँ
कहाँ चला गया, हाउ कैन ही फाइंड इट, वेयर कैन ही फाइंड इट, एंड ही क्वेश्चंस हिमसेल्फ, देन ही आंसर्स दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। इन्फेंट छोटा बच्चा जो होता है उसके फेस में उसका चाइल्डहुड आज भी मौजूद है। उसका जो चाइल्डहुड है अगर उसको उसके बारे में नहीं मिल रहा है तो वो उसको एक छोटे बच्चे के फेस में बहुत अच्छे से फील कर सकता है, महसूस कर सकता है और उसे देख सकता है। सो इट वॉज ए पोएम एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट सम लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द पोएम। राइम स्कीम ऑफ द पोएम। सो जस्ट लुक फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, जो कि हम देखेंगे राइम स्कीम क्या है इसकी। राइम स्कीम आप सबको पता है, जो हम फर्स्ट लाइन, इफ द फर्स्ट लाइन द लास्ट वर्ड sound of the last word of the first line of the poem is rhyming with either with the second or the third one, उस तरीके से हम उसको सेट करेंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है पोएम्स में। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम says when did my childhood go, so go and the second one is 11, 11 is rhyming with the third line heaven। ये देखिए, तो पहली जो गो है उसे हम ए मानेंगे, गो, फर्स्ट लाइन इज ए अगेन, वो तो उसमें ए ही राइट होगा। सो चाइल्ड व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, इसके आगे ए लिखेंगे आप लोग। देन द सेकंड वन इज 11, लास्ट वर्ड ऑफ द सेकंड लाइन इज 11 एंड लास्ट वर्ड ऑफ द थर्ड लाइन इज हेवन। सो 11 एंड हेवन, इनके दोनों के जो साउंड है लास्ट लेटर के वो सेम है, तो ये हमारे हो जाएंगे बी एंड बी। एंड द थर्ड फोर्थ लाइन ज्योग्राफी एंड बी, ई, दोनों का ई का साउंड आ रहा है पीछे, तो फिर ये हो जाएंगे आपके सी एंड सी। फाइनली डे बचा अकेला, तो उसको हम नाम दे देंगे डी, डे, वो किसी से भी राइम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये होगी आपकी राइम स्कीम ऑफ द पोएम, ए बी बी सी सी डी। ओके, नाउ रिफ्रेन भी है इसमें यूज किया गया। रिफ्रेन क्या होता है, इफ अ सेट ऑफ फ्रेज और ग्रुप ऑफ फ्रेज इज यूज्ड इन द पोएम रिपीटेडली देन इट इज कॉल्ड रिफ्रेन। अगर आपकी पोएम में एक ग्रुप ऑफ फ्रेज बार बार यूज किया जा रहा है तो वो आपका रिफ्रेन कहलाएगा। जैसे इसमें बार बार क्या यूज किया जा रहा है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, सो इट इज योर रिफ्रेन। देन फर्स्ट जो स्टैंजा था हमारा, ये रैशनलाइज स्टैंजा है, इसमें यानी कुछ रैशनल कुछ लॉजिकली थिंक कर रहा है कि भाई जो हेल और हेवन है वो सच में नहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो ये हो गया। एंड एंटीथेसिस है, हेल और हेवन दोनों ही अपोजिट सेंस लिए गए हैं, तो वो एंटीथेसिस हो गया, दोनों अपोजिट आइडिया, दोनों अपोजिट वर्ड्स जो हैं वो एक साथ यूज किए गए हैं। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मैंने आपको बताया पहले भी कि जब एक साउंड जो है वो बार बार यूज किया जाता है तो वो होता है, जैसे द टाइम, माय माइंड, whichever way, W का ऊपर द टाइम में टी टी का साउंड रिपीट हो रहा है, सो लेटर जो है रिपीट हो रहे हैं लेटर्स। एंड माय माइंड में एम एम लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, whichever way together that thoughts that, ठीक है। सो दिस वाज योर पोएम एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सबको ये पोएम समझ आई होगी एंड read this poem carefully and try to explain it and find the questions. Thank you. Stay healthy.